Hello everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. Thank you so much for watching, and today finally I have the beginner strategy for UGC NET. Um I'm sorry, this video got a little delayed. I did say that I would release it, I think yesterday, but I could not. I beg your pardon for that. So without any delay, let's get started. So you have two kind of ways. I mean, not even ways, you have there are two kind of situations, right? I do not expect you to appear for the June attempt, because of course you would have just started with your masters, and of course you can give it, because now you can give UGC net anytime during the masters. The only condition being that within 2 years of the release of your final, I mean, the release of the result of UGC net, you should have your report card, something like that. So okay, so there are two kind of things. Either you're going to appear for December 2022, or perhaps you could be planning for like June 23 or December 23. See, I do not know, right? I'm going to give a basic thing for every kind of date, but I would also like to hear from you. If it's a specific kind of date you want me to plan for, I would willingly do that. And I mean that the videos are not going to be more than 5 minutes each, because that's not going to be a very big task, the timetable thing. But for today, I'll be focusing on this: how do you prepare for December 22 if you are a beginner, right? First thing, you have ample time, right? If you're watching this video today, it is 22 February, right? So you have like March, April, May, June, July, August, September, October, November. And let's say 1st December is going to be the exam, right? How many months exactly? 9 months plus a few days here and there. So, do you think 9 months are enough? Well, I think they are. See, I understand that our backgrounds can be different, and especially if you've done your honors in English, I think 9 months are more than sufficient. In case you haven't, and you're still a good reader and an avid reader, I'm sure you would be able to do it in 9 months. People who are who barely have maybe taken their college seriously, because there are a few people who do not take college seriously. Actually, not even few, many, most of us, we do not take college very seriously, right? So of course it's going to be a little difficult for them, but hard work can bridge all the gaps, like literally all the gaps. Before I begin my strategy, I have to tell you about myself. Only then you will kind of then cut and copy and paste the strategy according to your needs, because of course this is not going to work for you absolutely, but yes, this is going to help you with the direction kind of thing. Rest is of course your choice, and it has to be your decision and your strategy finally. So I had exactly 9 months when I was preparing, and that is why this becomes a very ideal situation for me to explain you the strategy for December 2022, because it was exactly February 15 last year when I decided to appear for UGC net and decided to prepare for it. And I did have my semester exams too, so I had to manage them. So I ideally had only maybe 7.5 months. Let's keep it 7 here. Around 7 months I had to prepare for net, and I did, and I cleared it, as I've already told. So I'm going to tell you how you can do it in less time. Maybe I don't know if 7 months is less, but people do it in 6 months too. I mean, but you have to know one thing: backgrounds play a very, very major role. I'm not going to lie about anything here. I'm going to tell you everything as it is. If we talk about my case, I can say it, I just prepared for 7 months and I cleared it. But there are things, which helped me clear in those 7 months. My strengths: paper one. I was good at paper one. And I did not really have to put the time which some people have to. And of course, then these 7 months can't be 7 months. They have to be increased to maybe 10 months perhaps. So it will depend. I was good at paper one. I was also, like a
I mean, I did read my texts religiously, and that helped, because when you read a text deeply, it gives you a very good understanding of that period. I mean, of course, you will have the basic apparent kind of understanding if you do the summary, but if you do the reading, it really helps. But if I say that you do the reading now, I don't think that's going to be very wise, because of course, if you want to crack it in less time, you have to be smart. And of course, later on you can read the books, because books reading is the essence of literature, right? But for now, I understand we have to, we have to fight the competition, and competition is not easy. So you have to understand your strengths. People are good at paper, like I am good at paper one. I am good at uh, understanding bit of literature. These are my strengths. What are my weaknesses? In paper one, I do not like this topic, and I do not like this topic. I somehow, this was something I never liked at school. ICT, I just could not understand. And Indian logic, the terms really scare me. But this is paper ones. My comprehension is terrible. I don't know what I do in the exam, even though, I've read a lot of books and I think I'm okay, like, okay. But in the exam, always what happens is that there are two options left and I choose the wrong one. Like, two options I eliminate, two options are left, and out of the two options, I choose the wrong one. So, comprehension was my weak point. But unfortunately, I did not have the time to work on it, and I did not perform well also in comprehension. But I would say that comprehension is something where you can score. I realized this later, but had I done it before, perhaps I would have done better. So, comprehension can really, really give you a very good score, so you can focus on it. In paper one, I understand that, people, you know, there's a tendency of people to not do these because, you know, they don't know it and they don't want to take up a new subject because they feel that, because English literature is something that we are good at, obviously you're interested in it and everything. But trust me, the people you're going to compete with, all of them are going to be good at literature, all of them, because literature is what they're doing, right? I mean, of course there's going to be a slight difference here and there, but they are going to be good. They might not remember very much, but yes, they are going to be good at literature. So where can you score? Paper one. See, this is a beginner strategy. That is why I'm focusing very, very much on paper one, because paper one can make a huge difference, a huge difference. Because what I saw, and I'm saying it like the very little experience that I have, that paper one can really benefit you, and with less preparation. All I prepared, see, of course, you can't really see my thing, but I can tell you that only 20 minutes daily, but daily. This daily thing is very important. The people say consistency. Why? I don't know if you know this, perhaps you do, but I'll still tell you. Because, the connecting the dots thing, that analysis, that better understanding comes with consistency. Because, see, if today you read modernism and say perhaps tomorrow you read about postmodernism, you will be able to connect postmodernism or maybe try to differentiate between the two ages very easily, because modernism is going to be fresh in your mind, right? Because you just did it a day before, right? What if today I do modernism, then there is a break of like 4 or 5 days, and then I pick up postmodernism, and then I have already forgotten modernism? So that doesn't help in understanding. Plus, when you do it like back to back, what happens is that you will do postmodernism, that's a new topic. The postmodernism that you do will also help you in revising modernism, because when you'll be doing postmodernism, there will be things that you'll remember, that okay, in modernism we did this. So this kind of connection, to build it, consistency is important. If you put a gap in between, then you will not be able to connect, and that is why people say that consistency is very important. And trust me, it is very, very important. I'm not saying that, do not take breaks or do not do like stuff like that, but you should know when you have to do what. Planning is very important. Now let's come to planning before I come to English. See, you have enough time. You are beginners, you have enough time. बट टाइम, व्हेन यू हैव यू मस्ट हैव हर्ड कि जब एग्ज़ाम में, मतलब हमारे साथ तो ऐसा ही होता है यार, जब जिस एग्ज़ाम को 10 दिन होते थे ना पढ़ने के लिए, छुट्टियाँ होती थी बहुत सारी, वो इतना ख़राब जाता था ना। और जिस इंसान बोल रही हूँ,
जैसे एग्ज़ाम को सिर्फ़ 3 दिन होते थे या फिर 2 दिन होते थे, वो इतना बढ़िया जाता था। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, हमें लगता है यार टाइम है, तो हम धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करते हैं या फिर कई बार करते ही नहीं है। जब 3 दिन हैं, उस टाइम पे तो हमें लगता है ओह माय गॉड! टाइम ही नहीं है। हम पूरा अच्छे से करेंगे उसको, एकदम बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक पढ़ेंगे, टाइम कम है। वो चीज़ हमेशा दिमाग में रिंग करती रहती है, राइट? तो ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टाइम ज़्यादा होना बेनिफिट ही नहीं होता है, बहुत बार नेगेटिव में भी काम करता है। तो आपको टाइम को बहुत वाइज़ली यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, तो वो 9 मंथ्स का है, दिसंबर तक। 9 मंथ्स में आपको अगर नेट निकालना है, तो आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी और अपना टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप लोग कॉलेज भी जाओगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिन में 10 घंटे पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं, हम कितने घंटे का एग्ज़ाम देते हैं? 3 घंटे का ना? मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर मुझसे नहीं पढ़ा जाता है घर आके। क्योंकि इतना कंसंट्रेशन से वो 3 घंटे में हम पढ़ते हैं कि उसके बाद घर आके पढ़ाई चाहे अगले दिन ही पेपर हो, नहीं पढ़ा जाता है। बहुत अपने आप को ज़ोर लगाना पड़ता है कि भाई पढ़ लो, है ना? क्योंकि उस 3 घंटे में हम इतनी कंसंट्रेशन में होते हैं कि मतलब वी गिव द बेस्ट, राइट? अब वही 3 घंटे अगर आप घर पे पढ़ें कि हाँ, 3 घंटे और उतनी ही लगन से, डेडिकेशन से और कंसंट्रेशन से, 3 घंटे भी बहुत हैं। लेकिन आई बिलीव कि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक प्रेशर नहीं होता है हमें, तब तक हम उतना परफ़ॉर्म नहीं करते हैं। तो घर पे मेबी आई विल डबल इट, लेट इट बी 6 आवर्स। आई थिंक दिस इज़ द आइडियल टाइम। आई वोंट से आई स्टडीड फॉर इट दिस मच, मैं इससे ज़्यादा पढ़ती थी, पर मेरी कंपल्शन थी, क्योंकि आप लोग तो यार इंटेलिजेंट होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि और कितना नॉलेज है आपको। आई मीन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन यू पीपल आर गिविंग गेट एंड यू परफॉर्मिंग सो वेल। For me, when I started in February 15, I did not know who Philip Sidney is or who Edmund Spencer is. I knew just the very basics and the names of the people I had read in college, and of course the details of them. But as far as these other writers were concerned, other important writers were concerned, I was not very aware. So, I literally had to start, I won't say the scratch, but okay, I was not even very good. I was below average. So, I had to study a lot. But you can manage, I think. I mean, that's going to be depending upon you. At least, actually, honestly, this doesn't even matter. It doesn't matter. You should know that today I have to do this, and this should be complete by the end of the day. So that, when at night you go to sleep, I used to have a calendar, I had made this calendar myself like this, and I used to cross and cross, or like just like this. And, when I would not study for the day, and I would cross the calendar, I had such guilt. And, that guilt is very uncomfortable. So the next day when I would wake up, no, I would make sure that I am going to give my 100%, so that when at night I sleep, I am contented with whatever I've done in the day, right? So that I used to do. I think that's very helpful also. So that, and this is the ideal time, I'm telling you. Of course, I said that this is not something that you have to stick to. This is just the ideal time, and I would need this as a reference to tell you how much weightage has to be given to what. So I will take this as the base, but this doesn't mean that you have to study only for 6 hours. If you can study for 10 hours, nothing better than that. But I think that 10 hours gets a little too much. And there were times when I used to study for like 12 hours also. But um, you know then after that 2 3 days I would not be able to study anything. So those 12 hours would ultimately lead to nothing. So you have to see what your potential is. Studying 12 hours for one day, that's not difficult, because one day everybody can push beyond their limits. Pushing beyond limits consistently is something that is difficult. When something, जब कोई चीज़ नई होती है ना, तो उसमें करने में मज़ा भी आता है। धीरे-धीरे जब आप उसको यूज़्ड टू हो जाओगे ना, तो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट टू बी कंसिस्टेंट। आप जब इनिशियली पढ़ना शुरू करोगे ना, यूजीसी नेट के लिए राइटर्स करोगे, नोट्स बनाओगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। You will really enjoy that phase. But then comes it goes like this, like this and then this is the point where you're at your peak, और ये मतलब 1-2 महीने में आ जाता है, जब आपको
बहुत कुछ आता भी होगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी, और यू विल एन्जॉय बिकॉज़ सब कुछ इतना नया-नया होता है। फिर क्या होता है ना, फिर आप भूलने लगते हैं, आप बोर होने लगते हैं, आप रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, फिर ये डाउनफॉल शुरू होता है। इसमें अपने आप को ऊपर रखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मैं बोल रही हूँ ना, कंसिस्टेंसी, जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना आप कनेक्ट कर पाएँगे और उतना ही आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे, क्योंकि इवन दो पीपल से कि नेट में पता है यू हैव टू मेमोराइज़ अ लॉट एंड एवरीथिंग, आई एग्री, बट आपको मैं ना पक्का सॉल्व करने हैं मुझे वो जो अपना ये है इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस, आप तभी कर पाओगे अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा है, क्योंकि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन इस तरीके के ऑप्शंस होंगे कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बहुत सारे। तो पेपर में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब क्वेश्चंस अगर 100 हैं तो उसमें से 50 भी लोगों को नहीं आते होते हैं। लोगों को क्या, किसी को भी नहीं आते होते हैं। ऑफ कोर्स वी स्कोर अबव 50 बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो तुक्के तो सब मारेंगे, और तुक्के मारेंगे 50 क्वेश्चन में तुक्के मारे अगर 50-60 क्वेश्चन में, तो 10 का सही होना तो प्रोबेबल है ना यार। तो 50 तक पहुँचना, इस वजह से पीपल रीच टिल 50, तो वैसे होता है। मैं बात क्या करती, प्लानिंग की, राइट। सो आई सेड 6 आवर्स, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। आप इसको बढ़ा चढ़ा के जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं, उस हिसाब से डिवाइड करना है। मेरा मतलब था, तो इसमें 2 घंटे और 4 घंटे, 2 घंटे में आपको पेपर वन, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट पेपर वन, आपका लिटरेचर, लिटरेचर करना है। क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाए आपने 2 घंटे, नोट्स बनाने में ना मज़ा बड़ा आता है, लेकिन फिर हमें पता है क्या लगता है उन्हें, यार सुंदर 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 नोट्स बनाएंगे, अच्छा फिर सुंदर नहीं हो तो हमें लगेगा कि अच्छा बेस्ट नोट्स बनाएंगे, मतलब इतने अच्छे कि मतलब उसी में से आएगा। देखो आप बना सकते हो, और मतलब बनाना ठीक है, बना सकते हो, बट आपको देखना है कि बस टाइम कितना है, टाइम को वाइजली यूज़ करो। अगर आप बहुत अच्छे नोट्स बनाने के चक्कर में, मतलब यू इफ ट्राई, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने में, चाहे सरफेस लेवल नॉलेज हो पहले, उसके बाद यू हैव टू गो इन डेप्थ। मैं बताती हूँ क्या मतलब है मेरा। जैसे मान लीजिए आपके पास अब कोई राइटर नहीं याद आएगा मुझे, कोई कोई जैसे फॉर एग्जांपल जोसेफ कॉनरेड है ना, जोसेफ कॉनरेड। अब क्या है कि अम, तो आपने, जैसे मान लीजिए 2 घंटे आपने पूरा एक्सटेंसिवली अपने नोट्स बनाए, उसमें मान लीजिए जोसेफ कॉनरेड भी था, थे दो चार और लोग भी थे, लेकिन अब आपको क्या करना है कि अभी अच्छा ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में एक ही राइटर होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको राइटर्स का भी टाइम डिवाइड करना है कि ठीक है, मेरे पास इतना टाइम है और ये मुझे डिवाइड करना है राइटर्स में, तो मुझे किस किस राइटर को कितना कितना टाइम देना है ना। तो अब जोसेफ कॉनरेड हैं, तो मान लीजिए इनके जैसे एल्मियस फॉली है आपके पास, लॉर्ड जिम है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है। अब ये सारे वर्क्स हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं, है ना। इसका ना बहुत इजी तरीका ये है कि पहले आप विकीपीडिया पे जाइए, वहाँ पे जो वर्क्स सॉरी जो आपका राइटर होगा ना उनका नाम सर्च करो। वहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना उसमें कुछ एक दो वर्क्स के नाम लिखे होंगे, है ना। वो जो एक दो वर्क्स है ना, वो अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब वो फेमस है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वर्क पता होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी बहुत ज़्यादा फोकस करता है फर्स्ट और लास्ट वर्क पे। और पर इसमें एक और चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए दो वर्क्स के नाम हैं जोसेफ कॉनरैड के, फिर तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोसेफ कॉनरैड अपने आप में भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने देखा होगा पी वाई क्यूज़ में, तो जोसेफ कॉनरैड पे क्वेश्चंस आते हैं। जोसेफ कॉनरैड पे क्वेश्चंस आते हैं वो अलग बात है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड है हमें। लाइक वी डिड हार्ट ऑफ डार्कनेस, आप अपना ये देखेंगे यूपीएससी ऑप्शनल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जोसेफ कॉनरैड के लॉर्ड जिम प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब सॉरी आपका सिलेबस में है। तो आप सोच रहे हैं जोसेफ कॉनरैड की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो अब आप यहाँ पे अगर कोई दो वर्क्स लिखे हैं तो आपको बहुत डिटेल में पता होने चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोल दूँ जैसे से फॉर एग्जांपल हु मे बी अगाथा क्रिस्टी,
Hardly a question is asked, right? आई डोंट नो इफ आई गॉटन द स्पेलिंग राइट, आई एम नॉट श्योर। तो अगाथा क्रिस्टी का आपको फिर क्या करना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आज तक क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया। तो आपको बस विकीपीडिया का पहला पेज देखना है, कोई दो इंपॉर्टेंट अगर वर्क्स ऊपर सिर्फ पैराग्राफ में ही लिख दिए तो वो देख लो कि क्या है, और उनका बेसिक सा एक लाइन का कि क्या है, बस याद भी नहीं करना है, चाहे आपको बस पता होना चाहिए कि अगाथा क्रिस्टी किस टाइप से लिखती थी। या फिर आपकी कोई और एग्जाम्पल लूँ तो किसका, रुडयार्ड किपलिंग है जैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी। पर आपको पता कैसे चलेगा, पीवाईक्यू से। अब आप मुझे बोलोगे कि याद नहीं रहता है, ऐसा होता है, जैसे नहीं याद रहता है ना कि पीवाईक्यू से मतलब कौन सा राइटर कितनी बार आया, नहीं याद रहेगा आप, मतलब एक बार पढ़ के तो यार कुछ भी याद नहीं रहता। तो आपको करना क्या है, चाहे तो आप डिजिटल बना लीजिए क्योंकि डिजिटल आजकल बहुत ईजी हो जाता है। नहीं बनाना है, आप रिटन लिखिए, आप जितनी बार जो राइटर आ रहा है उसका नाम लिखते जाओ। डिजिटल बनाओगे तो वैसे ईजी रहेगा, आप सर्च करके फिर यू कैन फाइंड आउट कि आपने किसी का नाम कितनी बार लिखा है। जितनी बार वो लिखा है इतना बार उसका पूछा जा चुका है पेपर में, उतना ही वो इम्पोर्टेंट है राइटर। अब जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, आप विकीपीडिया देख सकते हैं। विकीपीडिया को ना, मुझे ऐसा लगता है कि विकीपीडिया को काफ़ी मतलब देखना चाहिए क्योंकि विकीपीडिया मतलब यूजुअली पहली साइट होती है जो डिस्प्ले होती है। इसका मतलब चांसेस हैं कि अगर एग्जामिनर अगर वो नेट सर्च कर रहे हैं कोई क्वेश्चन डालने के लिए, तो विकीपीडिया उनके लिए भी पहली साइट होगी खुलने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि वो वहाँ से कुछ इंस्पायर होके बनाए। इवन दो आई फील कि विकीपीडिया से क्वेश्चंस मतलब बनते तो हैं, इस बार मैंने देखा भी है, फ्लावर्स फ्लावर्स ऑफ इविल चार्ल्स बॉडलर का सीधा क्वेश्चन था विकीपीडिया की फर्स्ट फर्स्ट लाइन नहीं, जो मतलब उसकी फर्स्ट हेडिंग की फर्स्ट लाइन में था। तो यू नो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विकीपीडिया। और विकीपीडिया को काफ़ी अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, लेकिन विकीपीडिया आज की डेट में मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ईजी कर देगा आपकी प्रिपरेशन। ठीक है। दूसरी चीज़, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको राइटर्स का कैसे पता करना है कि कौन कितनी डेप्थ में पढ़ना है, और ये भी बता दिया कि पता कैसे चलेगा कि कितनी बार कौन सा राइटर आ गया, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन कितनी बार आ चुके हैं। ओके, दैट वाज अबाउट राइटर्स। व्हाट एल्स, आई हैव टू टॉक अबाउट प्लानिंग अभी। प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग ना घंटों की नहीं होनी चाहिए, ये जो मैं यहाँ दे रही हूँ जिसे जस्ट अ रफ आइडिया कि आपको नोट्स इतनी देर में बन जाने चाहिए और डबल द टाइम रिवीजन। इन सिंपल मैनर, इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैंने जोसेफ कॉनरैड के नोट्स बनाए मान लीजिए 30 मिनट्स लगा के, तो अगला अराउंड 1-1.5 आवर मुझे वो याद करना है। और अगर मैं आज जो मैंने आज लिखा है वो आज ही मुझे याद हो जाना चाहिए। अगर मैं वो कल को छोड़ूंगी ना तो वो मुझे कम याद होगा, ये आपने देखा ही होगा कि ऐसा होता है। और हम रिस्क नहीं ले सकते ना, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है। आज का आज ही पढ़ना है ना, आज का आज ही पढ़ना है, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। वैसे तो आपको पता होंगी ये चीज़ें, बट स्टिल फॉर दोज हु डू नॉट नो, आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस। ये तो हो गए राइटर्स। लिटरेचर के नोट्स ठीक है, ये भी बता दिया मैंने याद करने का। प्लानिंग फॉर द डे एंड प्लानिंग फॉर एवरी आवर, क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत टाइम होता है ना यार, तो हम सोचते हैं कि ठीक है आज 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 समझ लीजिए आज मेरा शुरू कर दिया मैंने अपना, है ना, नेट की प्रिपरेशन। अब मैं बस रैंडमली सोच रही हूँ ठीक है आज मैं करूँगी ओल्ड इंग्लिश और आज मैं करूँगी परहैप्स मिडिल इंग्लिश, और फिर साथ में मतलब ऐसा लगा कि नहीं भाई आज तो मैं बहुत पढ़ूंगी, आज तो ना मैं वो भी कर दूंगी, अपना क्या है वो, द एज ऑफ चौसो, राइट। सो ठीक है, मतलब मैं सब कुछ ही कर दूंगी, एक तो ऐसा ना ये बड़ा होता है, फिर पता है क्या होगा, रात को मैं सोचूंगी हाय मेरा तो ओल्ड इंग्लिश भी नहीं हो, नहीं 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 नहीं, उससे पहले पता है क्या होगा कि बहुत अच्छे से इतना अच्छा से करने की कोशिश करूंगी कि मुझसे बेटर ओल्ड इंग्लिश तो किसी को आएगी ही नहीं। अच्छा ये तो हो जाएगी, जब तक मैं मिडिल इंग्लिश तक पहुंचूंगी एक तो मैं थक जाऊंगी, ड्रेन हो जाऊंगी, टाइम कम बचेगा तो मुझे लगेगा ओ नो मेरा तो आज टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। चलो मान लीजिए ये भी कर लिया, ये तो हो ही नहीं पाएगा, राइट। फिर पता है क्या होता है, फिर आती है डिजेक्शन, ओ नो हम तो टारगेट ही कंप्लीट नहीं कर पाए। पर टारगेट रियलिस्टिक भी तो नहीं था ना, इतना आप एक दिन में कर भी कैसे सकते हो, यही एक दिन में हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर एक दिन का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन नोट्स बनाए और फिर अगले दिन को डाल दिया कि ठीक है अब कल ये हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट डे। नहीं, बिग नो, क्योंकि वो नहीं आएगा, क्योंकि याद करना सबसे ज़्यादा वो होता है नोट्स, क्योंकि नोट्स आप नए नए बनाओगे फ्रेश फ्रेश मज़ा आएगा। फिर जब याद करना पड़ेगा ना तो फिर उसमें बोरियत आती है।
तो इससे अच्छा है कि आपने अभी नोट्स बनाए, अभी रिवाइज़ करो, वो इतना बढ़िया याद होगा ना आपको। फिर अगले दिन क्या करना है आपने, आज बना लिया, आज याद भी कर लिया, अगले दिन सुबह उठ के इससे पहले कि आप कोई नोट्स बनाओ या कुछ बनाओ, आपने आँखें बंद करनी है और वो रिवाइज़ करने की कोशिश करनी है बिना नोटबुक देखे। कोशिश क्या करनी है, रिवाइज़ करना है, अपने पिछले दिन ऐसे याद करना है कि अगले दिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बिना बुक देखे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसको बिल्कुल अपने दिमाग में आना चाहिए। अब इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस आते हैं पेपर में, कुछ लोग नहीं बोलते। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग बोलते होंगे कि ऑप्शंस आते हैं पेपर में तो हम ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाएगा। ऐसी अप्रोच हेल्प नहीं करती है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहेगा, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता ही नहीं होगा ना क्वेश्चन के बारे में ना आंसर के बारे में। बेसिक सा कुछ आपको नॉलेज होगा किसी बारे में, किसी राइटर के बारे में मान लीजिए, या शायद उसके वर्क के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा। फिर आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ठीक है, ये राइटर था, इसके ऐसे-ऐसे वर्क्स थे, तो शायद ये ऐसे-ऐसे जैसे वर्क्स लिखते होंगे। अब वो जो एनालिसिस है वो कब आएगा? जब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आपको बहुत अच्छे से याद कब होगा? जब मल्टीपल रिविजन्स होंगे। तो आज नोट्स बनाएँ, आज ही याद करना है। मान लीजिए आपका टाइम वेस्ट हो गया है ना, आप पढ़ना चाह रहे थे 6 घंटे, अब आप पढ़ पा रहे हैं सिर्फ़ 3 घंटे। आपको पता है कि आपके पास सिर्फ़ 3 ही घंटे हैं पढ़ाई के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे में नोट्स बनाएँगे और क्योंकि हमारे पास 2 घंटे में नोट्स बनाएँगे और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम सिर्फ़ 1 घंटा रिवाइज़ कर पाएँगे। नहीं, 1 ही घंटा नोट्स बनाएँगे हम और बाकी के 2 घंटे हम रिवाइज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ, बुक लेके लगे हुए हैं पेज टर्न करने, क्योंकि आई नो ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता था। पर आपका बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि नहीं, आज याद होना चाहिए, क्योंकि शायद अगर मैं आज याद नहीं करूँगा या करूँगी, तो शायद नेट के पहले मैं तैयार ही नहीं हो पाऊँ। आप सोच लीजिए, मुझे नहीं पता लोग कितनी बार रिवाइज़ करते हैं यार, और हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। बट मैक्सिमम लोगों को आई हैव हर्ड सेइंग कि 6, 7, 8 रिविजन्स, 9 रिविजन्स, हो सकता है उनका तरीका अलग हो रिविज़न करने का, जिसमें बहुत टाइम लगता होगा। पर और आई जेन्युइनली मीन इट, क्योंकि हर इंसान का अलग तरीका होता है पढ़ने का। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है, 40 प्लस टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड ब्रिटिश हिस्ट्री लिटरेचर। जो भी ब्रिटिश लिटरेचर जो है मेरा 40 प्लस टाइम्स रिवाइज हुआ है। प्लस मतलब, हाँ, मुझे याद नहीं है इसके बाद कितना, पर 40 तो मिनिमम है। और इतना है ना कि जैसे मुझे अगर आप बोल दें कोई ऑथर का नाम, से मे बी सैमुअल बटलर, तो मेरी आंखों के सामने मेरे नोट्स का वो पेज एकदम एकदम आ जाता है कि ठीक है, ये राइटिंग है। और मान लीजिए पेपर में कोई अननोन वर्क आए सैमुअल बटलर का, तो मुझे पता रहेगा कि सैमुअल बटलर किस टाइप के वर्क लिख सकते हैं और किस टाइप के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स मेरे बिल्कुल दिमाग के सामने हैं। और उनको दिमाग के सामने लाने में रिविजन्स बहुत लगते हैं, एकदम से नहीं होता है। पहले तो नाम ही बड़े वो लगेंगे कि ये क्या लिखा है, मतलब वो जो उनके वर्क्स के नाम होंगे वो याद ही नहीं होंगे। फिर आपको जब याद हो जाएँगे, फिर ये नहीं याद रहेगा कि किसने क्या लिखा था। जब ये भी याद हो जाएगा कि किसने क्या लिखा था, तो ये याद नहीं रहेगा कि कैरेक्टर्स कौन थे। अच्छा, कैरेक्टर्स पे बहुत फ़ोकस करना भी नहीं है। कैरेक्टर्स पे सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस करना है, एक तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। इस सारे में आपको एक चीज़ अगर बहुत फ़ोकस करनी है, तो वो है मॉडर्न प्लस पोस्ट मॉडर्न। आपने गेट में भी देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। नेट में भी यही ट्रेंड है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न का। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न बहुत अच्छे से करने हैं। तो जब आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना, आपका फोकस होना चाहिए, पहले आपको मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की कैरेक्टर्स याद हो जाएं, उसके बाद आप बाकी का करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ। मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने नोट्स बनाए ना, मान लीजिए आपने नोट्स बनाए, मान लीजिए आपने यहाँ यहाँ चल पड़ते हैं, जोसेफ कॉनरेड। आपने बना दिया, ठीक है, एल्मियस फॉली है, इसमें ये कैरेक्टर है, इसमें ऐसा होता है, 1-2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया अपने नोट्स पे, जो भी बना दिया है ना। उसके बाद आप उसका कोई और वर्क लिखेंगे, फिर कोई और वर्क लिखेंगे। तो यू नो जब आप अ, याद करेंगे ना, आपका पहला फ़ोकस होना चाहिए सिर्फ़ आपका राइटर के नाम याद करने में और उनके वर्क्स के नाम याद करने में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका फर्स्ट जो चीज़ होगी, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना कि दिन में 1 घंटा आपने नोट्स बनाने हैं और 2 घंटे रिवाइज़ करने हैं, अगर 3 घंटे बचे हैं आपके पास। तो 1 घंटे में आपके जो नोट्स बनेंगे ना, वो आप बनाओगे तो डिटेल्ड ऑब्वियसली,
लेकिन जब आप उसे याद करोगे ना, उसका तरीका है, पहले आप उसका मेजर याद करोगे कि ठीक है, मैंने वर्क्स के नाम याद कर लिए जो मेजर लोग हैं, सॉरी मेजर आपके वर्क्स हैं। अब आपने अगर आपको वर्क्स याद हो गए टाइमली, मान लीजिए आपके पास 1 घंटा था 2 घंटे थे रिवाइज़ करने के लिए, और आप मान लीजिए 1 घंटे में आपने सारे जितना भी आज नोट्स बनाए थे, वो सारों के आपने वर्क्स याद कर लिए, राइट? आप डिटेल्स में नहीं गए और आपके पास अभी भी 1 घंटा बचता है। देन यू कैन गो डीप इंटू द स्टोरी। वंस यू गो डीप इनटू द स्टोरी एंड यू रिमेंबर दैट टू, देन यू गो टू द कैरेक्टर। ऐसा नहीं करना है कि एल्मेस फॉली पकड़ा और फिर बस उन्हीं का पूरा पूरा वो लिख रहे हैं कि हाँ, उन्होंने ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, वो हुआ था, ये कैरेक्टर लगे हैं याद करने, इतनी देर में पता चला सिर्फ एल्मेस फॉली याद हुआ है। ये नहीं करना है, क्योंकि घंटे तो 2 ही है ना। अब आप सोचेंगे हम एक्सटेंड कर देंगे, वो नहीं हो पाता है। आपके पास 2 घंटे हैं। आपको टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। हर एक मिनट जो आपके पास है वो प्लान्ड होना चाहिए। अब आपको पता है कि ठीक है, आपको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है किसकी। पेपर में कैरेक्टर्स कम पूछे जाएँगे, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि किसने क्या वर्क लिखा, राइट? अगर वो भी हो गया, फिर उसके बाद पूछेंगे स्टोरी से कुछ रिलेटेड कुछ बोलेंगे। अगर आपको स्टोरी का आइडिया होगा तो आप गेस कर सकते हो, है ना? स्टोरी उस मामले में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इफ़ यू नो द स्टोरी यू कैन गेस द आंसर। सो आपको पहला काम ये करना है, जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं आज के लिए, मान लीजिए आपने मॉडर्न एज में 4-5 राइटर्स के नोट्स बना लिए उस 1 घंटे में जो आपके पास था। अब 4-5 राइटर्स के नोट्स बनाने के बाद आपको 2 घंटे हैं रिवाइज़ करने के लिए। आप पहले सारे राइटर्स के मेजर वर्क्स याद करेंगे, उनको निमोनिक निमोनिक बनाओ, अपने लॉजिक से याद करो, जैसे मर्ज़ी याद करो, याद रहना चाहिए। आपको ये रियलाइज़ेशन होनी चाहिए कि आज आप पढ़ रहे हो, तो शायद आपको रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑफ़ कोर्स मिलेगा और आपको करना भी है बहुत बार रिवाइज़, पर पढ़ना कैसे है कि आज और आज ही आखिरी बार है कि आप एक राइटर को वो दे सकते हैं, आप एक राइटर को फ़ोकस कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ रिवीजन होगा, रिवीजन फ़ोकस्ड नहीं होता है, वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते उसको कभी भी। तो आज आप जितना ज़ोर लगा के उसको अच्छे से तैयार करोगे, आपको उतना 10 महीने बाद हेल्पफुल होगा। अब अब आप सोचो ना, आप आज पढ़ रहे हो, 10 महीने बाद आपको वो पेपर में पूछेंगे। याद रखना मुश्किल हो जाता है, निमोनिक्स बहुत हेल्प करेंगी, बनाओ फ़नी निमोनिक्स बनाओ। ऐसे मतलब इमेजिन करो कि हाँ, मतलब कुछ कुछ भी इमेजिन करो, स्टोरी बनाओ, वो सबको याद रहेगा और याद ही रखना है हमें। नोट्स ठीक है बनाओ पर याद रखो। ठीक है? तो ये आपका डेली प्लानिंग थी कि डेली आपको कैसे करना है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि यू एंड अप फोकसिंग ऑन समथिंग व्हिच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपको थोड़े से भी आपको नॉलेज है तो आपको पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर फिर ऑब्वियसली क्रोनोलॉजी है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ तभी बोल रही हूँ अगर क्योंकि थोड़ी सी भी आपको है ना नॉलेज कि बेसिक्स आपको क्लियर हैं, जिससे ऑनर्स वाले बच्चों को क्लियर होंगे, क्योंकि ऑनर्स में हम करते हैं ये सब, है ना? तो वो इवन दे कैन स्टार्ट विद मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न इफ़ एट ऑल दे आर विलिंग टू, क्योंकि मुझे भी पता है, मुझे भी पसंद नहीं था, मैंने भी स्टार्टिंग से ही किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो हम पहले करते हैं ना वो हम ज़्यादा याद होता है, क्योंकि हम वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से करते हैं। टाइम के साथ आगे ये एनर्जी ऑब्वियसली डाउन जाती है, हम थक जाते हैं। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, राइट? तो चेंज मिलता नहीं है, रोज़ पढ़ना है, तो वो कम हो जाएगा। इसीलिए आप जल्दी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पहले करें और जो अनइम्पोर्टेंट है वो बाद के लिए छोड़ दें। राइट। So that is about it. What else? I told you about planning. Uh, I told you about the months that. Yes, I have to tell you one more thing. Let me just take another paper. So, you know, say for example, you have 9 months. इफेक्टिवली 7 मंथ्स रखूँगी क्योंकि बीच में एग्जाम्स भी होते हैं और आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा, पर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी एग्जाम्स के बीच में भी। अगर आपके लिए नेट इम्पॉर्टेंट है तो वो एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखिए सबका डिफरेंट हो सकता है ओपिनियन, पर मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन मार्क्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप इफ़ यू हैव बीन गुड इन योर ग्रेजुएशन, अगर आपको लगता है कि आप एक फेयरली अच्छा आंसर लिख सकते हैं मिनिमम प्रिपरेशन से, इतने ही तो नंबर स्कोर करने हैं ना यार। ये तो हो जाएंगे, नेट करना इज़ डिफ़िकल्ट। आप इस पे इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक जो आता है ना एग्ज़ाम्स की वजह से, ये बहुत ही रियल वाला ब्रेक होता है, आपको वापस आने में टाइम लगता है। तो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा पढ़ते रहना है और टाइम निकालना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि टाइम निकालने के लिए आपको बुक्स होनी ही चाहिए सामने। आप जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप आँखें बंद करो या
और अब रिवाइज़ करना शुरू कर दो। आई नो थोड़ा-सा पेनफुल रहता है ये, लेकिन वो अब आपके ऊपर है। अगर आपको जल्दी करना है और मतलब देन लेटर ऑन यू वांट टू लिव योर लाइफ लाइक फुली, क्योंकि मेरा तो यही प्लान था कि जल्दी निकालो और फिर मज़े करो। तो आपको थोड़ा-सा पेन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं क्या करती थी जब ट्रैवलिंग टाइम होता था, तो ऑब्वियसली बुक्स तो नहीं पढ़नी चाहिए, वो आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। पर आई यूज्ड टू रिवाइज़, ठीक है? मतलब जैसे जो काम मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सुबह उठ के सबसे पहले यही करना है, जो रात को पढ़ा, वो सुबह उठ के रिवाइज़ करना है। तो वो चीज़ मैं ट्रैवलिंग में कर लेती थी कि ठीक है ये इवन दो आई वाज़ इन द लॉकडाउन, बट ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी बीच-बीच में। लास्ट में द लॉकडाउन काइंड ऑफ वाज़ नॉट देयर एंड आई हैड टू गो। तो उस टाइम पे तो ये चीज़ बहुत हैंडी आई, मैं लिटरली रिवाइज़ कर रही होती थी उसका। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही दिन का रिवाइज़ करना है, कि कल ये किया तो आज हम सिर्फ़ कल वाला रिवाइज़ करेंगे। परसों का, उससे पहले का, सुबह को भी एक टाइम वो करो कि ठीक है, सुबह आपके पास कितना टाइम है रिवाइज़ करने के लिए। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा है। मान लीजिए आप 1 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप रिवाइज़ कर सकते हो कि कल मैंने ये पढ़ा, क्रोनोलॉजी में ही रिवाइज़ करना है सारा कुछ। और फिर आपने जैसे कर लिया ना, आपको याद आ जाएगा कि यार मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे ये याद नहीं आ रहा। देन यू गो बैक टू योर नोटबुक, उसमें 5 या 10 मिनट लगेंगे और आप देख लोगे अच्छा, ये मैं भूल गई थी और अब मैं ये कर सकती हूँ। तो अब वो याद हो जाएगा। और अब जैसे-जैसे आप रिवाइज़ करते जाएँगे ना, मतलब मैं तो ऐसे करती थी, जैसे ऐसा नहीं कि पिछले दिन का आज, उससे का भी, फिर उससे पिछले का भी, फिर उससे पिछले का भी। मैं जितना हो सकता है उतना रिवाइज़ कर लेती थी सुबह उठ के, क्योंकि क्या है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सिर्फ़ ब्रिटिश किया है, कि मैंने इंडियन भी किया है, कितनों के नोट्स बनाए हैं। फ़र्क ये पड़ता है मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें बिल्कुल बैठ गई हैं, और वो कैसे बैठेंगी ऐसे रिवाइज़ करके। जो मेरे 40 रिविज़न्स पूरे हुए हैं, उसमें इसका बहुत रोल है। लिटरली रोज़ कितना पीछे वाला सारा सारा रिवाइज़ करना है। तो आपको वो करना है। आउच! सो दैट इज़ वन। ओके, व्हाट एल्स वाज़ आई गोइंग टू टॉक अबाउट? अम, अब जैसे ना क्या है आपके पास, टाइम है, मान लीजिए 7 मंथ्स का टाइम है। आपको 7 मंथ्स में डिवाइड करना है अपना जितना भी आपको ऑब्वियसली सिलेबस, अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? पहली बात तो थोड़ा-सा अनरियल है अगर मैं कहूँ कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 7 मंथ्स में, कंसीडरिंग कि आपकी क्लासेस भी लग रही हैं। अगर तभी क्लासेस नहीं लगती हैं फॉर सम रीज़न, कि मतलब कुछ भी कारण हो सकता है और आपको टाइम मिलता है तब तो देखिए कर भी सकते हैं। पर मेरे हिसाब से 7 महीने में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ज़रूर कहा कि पॉसिबल है और कर सकते हैं, बट नाउ आई रियलाइज़ कि लॉकडाउन में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, और अगर आपको जाना जाना पड़ेगा कॉलेज तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाएगा यार, थक भी जाते हैं। तो मे बी यू कैन, या तो बहुत विल पावर हो, तब भी हो सकता है। बट आई थिंक 7 मंथ्स इज़ थोड़ा-सा अनरियल, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये जो 6 घंटे वाला टाइम मैं यहाँ बोल रही हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आप कॉलेज के साथ इतना टाइम निकाल सकते हैं या नहीं। अब मान लीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है, दिसंबर 2022 में नहीं, हम जून 2023 में देंगे। यही सब करना है, करना यही है, लेकिन बस ये है जहाँ 6 घंटे हैं वहाँ शायद आपके पास सिर्फ 3 घंटे रह जाएँगे। तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से वो आपको अपना प्लान करना है। प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आज आपको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना वो है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टाइम के साथ जान जाएँगे अगर आपको नहीं पता है अभी। प्लानिंग के बिना इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आप खुद सोचो ना, जैसे हम लंबी सी रेस लगी है, मान लो मैराथन है, दूर तक जाना है और आपको नहीं पता कि वो एंड पॉइंट कहाँ है, आपको दिखेगा भी नहीं, तो आपका दौड़ने का मन क्यों करेगा? जब तक आप अपने लिए वो छोटे-छोटे एंड पॉइंट्स नहीं बनाओगे कि जहाँ आपकी एक छोटी वाली रेस खत्म होगी, व्हिच इज़ इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बड़ी वाली रेस, तब तक आपका मन ही नहीं करेगा दौड़ने का, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब कोई चीज़, ओह! आई एम सो सॉरी। अम, सो जब कोई चीज़ आपकी, अम, क्या बोल रही थी? हाँ, तो जब कोई चीज़ दिखती है ना हमें, तो वो करना ईज़ी होता है। आपको क्यों लगता है कि हम एग्ज़ाम से पहले इतना अच्छा पढ़ते हैं? क्योंकि पता है अगले दिन एग्ज़ाम है। आपको क्यों लगता है कि जब पता होता है एग्ज़ाम 10 दिन बाद, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि अभी दूर है और वो जो गोल है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा होता। अगर आप रोज़ का प्लान बनाएँगे ना उन 10 दिनों का भी, कि ठीक है 10 यूनिट्स हैं, आज ये कंप्लीट नहीं होगी, तो मतलब 10 दिन तक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो क्या होता है कि
आप करते हैं कि ठीक है 1, 2, 3, अब आज नहीं हुआ ये वाली कल कर लेंगे, ये वाली कल कर लेंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएँगे। वही ना कि पहले 10 दिन में 10 यूनिट्स होती हैं, फिर 5 दिनों में 10 होती हैं, फिर 1 दिन में 10 होती हैं। पर आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि यूजीसी में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वो एनालिसिस नहीं बिल्ड कर पाएँगे, आप वो जो एलिमिनेशन करनी पड़ती है पेपर में वो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर आता होगा और आप पेपर को देख के बोलें अरे वाह मुझे तो पेपर आता है। ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिट एंड ट्रायल, और वो हिट और ट्रायल का जो चीज़ है वो सक्सेसफुल तभी होगा अगर आपको वो एनालिसिस है, अगर आपको वो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। और वो कैसे आता है? कंसिस्टेंटली पढ़ के, अच्छा पढ़ के, डिटेल में पढ़ के। और वो क्या है ना कि मैंने पता नहीं किसको सुना था बोलते हुए कि खाना रोज़ खाना पड़ता है। एक दिन खाओगे तो वो पचेगा नहीं। आई डोंट रियली रिमेंबर किसने बोला था, पर ये बहुत ट्रू है कि यू यू हैव टू ईट एंड डाइजेस्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ठीक है 2 दिन पहले 10 दिन में 10, फिर 5 दिन में 10, फिर 1 दिन में 10। तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि आपको नेट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट थिंग देन। तो आपको फ़ोकस्ड रहना है, क्योंकि गोल दूर है तो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो आपको फ़ोकस्ड रहना है, अपना छोटा-छोटा गोल बनाते रहना है, व्हिच विल हेल्प यू, वो दैट विल कीप यू गोइंग। ठीक है? दैट इज़ अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर दिस थिंग मंथ्स वाला। और अगर यही चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे अगर आपको ये जून में करनी है, दिसंबर में करनी है, प्रोपोर्शन डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब एक चीज़ तो मैं आपको बोल दूँ, ये जो परफेक्शन है ना, ये कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं। परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट मेमोराइज़ेशन, परफेक्ट एवरीथिंग नहीं होगा ये। आपको क्या करना है? अपना बेस्ट देना है। आप आज का जितना टाइम है ऐसा सोचना है कि शायद ये राइटर मैं आज लास्ट टाइम रिवाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उससे आपको एक रहेगा कि ठीक है ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आप घंटा एक दे रहे हैं ना वो फुल दें। फिर उसमें वो नहीं होना चाहिए कि कुछ डिस्ट्रैक्शन है या किसी भी टाइप का कुछ वो है। उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ट्रस्ट मी, कम पढ़ के भी लोग निकालते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी, बहुत आता है आप लोगों को, बहुत। So I think you will be able to manage. I think I covered most of the things here. Um, just in case I did not cover something, you can let me know in the comment section. आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ और टाइप की स्ट्रैटेजी लानी चाहिए, शायद ये वर्क नहीं करेगी, एंड इफ यू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कब का टारगेट कर रहे हैं। पर ये दिसंबर 2022 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना, मतलब कि ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी, हिस्ट्री, सॉरी आपकी क्रिटिसिज्म करो ये भी, लेकिन मेरे को लगता है कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ करना है। चाहे मान लीजिए आपको इंडियन बड़े अच्छे से नहीं आता है, पर एक एक आइडिया था कि आप इजी क्वेश्चन ना छोड़ो। क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे अगर क्वेश्चन इजी है, तो जिसने, दो टाइप के लोग हैं, एक जिसने तैयारी की है, वन हु इज़ प्रिपेयर्ड, वन हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। अब देखिए प्रिपेयर्ड को तो आएगा ना इजी, वो तो कर ही लेगा क्योंकि इजी है। नॉट प्रिपेयर्ड का वो छूट जाएगा। तो अब नॉट प्रिपेयर्ड अगर वो इजी सी बेसिक सा पढ़ ले तो वो चांस है ना कि सही हो जाए। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए पेपर डिफिकल्ट है, मतलब उस वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और मान लीजिए दोनों में प्रिपेयर्ड और नॉन प्रिपेयर्ड हमारे पास यहाँ भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है प्रिपेयर्ड ना कर पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने वो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और यहाँ तो खैर होएगा ही नहीं। पर ये ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ चांस है कि चाहे जितना मर्जी पढ़ लें, हो सकता है इनका भी गलत हो जाए। पर हम इजी तो कर लें। मुझे पता नहीं कि मैं समझा पा रही हूँ ये या नहीं, बट इजी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, इजी इज़ द लो हैंगिंग फ्रूट। आप इजी हर टॉपिक का करके जाओ, ताकि आप इजी में ना चूको। कट ऑफ हमेशा हमेशा इजी क्वेश्चंस, मतलब इजी नहीं, मीडियम, थोड़ा सा आप तुक्का भी ले लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पेपर में हार्डली लाइक क्वेश्चंस होते हैं जो डुएबल होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब अगर जैसे दिस वाज माय स्कोर राइट इन इंग्लिश लिटरेचर, जो पेपर 2 था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि मुझे कितने पेपर में क्वेश्चन आते थे, पर मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि ऐसे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन थे, जिनमें मैं दो में अटक रही थी, कि मुझे नहीं पता चल रहा था, दो ऑप्शंस बच रहे थे, उनमें से कोई एक सही था। अब उनमें से कुछ ऑब्वियसली गेसेस लगे होंगे, एंड ऑब्वियसली आई गेस्ड सो मेनी क्वेश्चन, उसके बाद ये स्कोर बना है, तो मैंने गेसिंग तो की ही है। सो गेसिंग
से आप ये स्कोर पे पहुंचते हैं। आप हमें क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर्स देखते हैं, हम डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ओ माय गॉड ये तो कैसे किया होगा, बहुत टफ पेपर है। वो सबके लिए टफ था उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पे पूछ लिया गया, तो आज की डेट में जो आपके साथ बैठेंगे ना, वो तो वो करके जाएंगे, वो उन राइटर्स के बारे में रिसर्च करके जाएंगे। बस आपको भी वही करना है, आपको वो करना है जो सब कर रहे हैं। पेपर में 100 तो आने नहीं है, 50 से ऊपर स्कोर करना है। वो कर लोगे आप, अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करोगे और अच्छे से उनको मतलब उन पे नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाना मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाते हैं प्रीवियस ईयर्स से, और एक थोड़ा सा सेपरेट वीडियो में डाल दूंगी, प्रीवियस ईयर एनालिसिस का डालूंगी कि कैसे आप एलिमिनेट करोगे, कैसे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नहीं भी आता था तो कैसे किया जा सकता था। अब देखिए जो गेसिंग है ना वो 50-50 रहती है, लेकिन जब आप इंटेलिजेंट गेस करते हो तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उसके सही होने के। तो इंटेलिजेंट गेसिंग डेवलप करना अभी से शुरू कर दो। आपको जो भी नॉलेज है उससे गेस करने की कोशिश करो, फिर सोचो कि मैंने अगर गेस गलत होता है फिर सोचो कि क्यों गलत हुआ गेस, मेरे को ऐसे गेस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अभी आपको ये हवा में लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। मैं डालूँगी एनालिसिस में, एक पेपर तो सॉल्व करूँगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो या दैट्स इट। आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो। हुँ, ठीक है। अच्छा हाँ, पीवाईक्यूज़ में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है आज कि जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करना है। अब पीवाईक्यूज़ ऐसा नहीं है 2012 से शुरू कर दिए बैठे हैं, कुछ लोग तो 2004 से भी करते हैं। करो, आपका मन कर रहा है आप 1990s से करो, लेकिन पहले आपने 2019 से ही करने हैं, क्योंकि होएगा क्या पता है क्या लास्ट में? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 2012 से शुरू किया। 2015 तक आते-आते मैं इतनी थक गई ना, एक तो थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि जैसे बिगिनर्स होते हैं, नहीं पता होता है कौन-सा ऑथर है, कौन है, नहीं पता है, पता नहीं ऐसा लगता है हवा में ही चल रहा है सब कुछ। तो उसमें क्या है कि थोड़ी बोरियत आती है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, आप 3 साल के क्वेश्चन पेपर लेंगे, उनका आपके जो भी राइटर्स हैं ये वाले 2019 से 21 तक, जो भी राइटर्स हैं आए हैं या वर्क्स आए हैं उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहे तो फर्स्ट पेज ऑफ विकिपीडिया पढ़िए और ख़त्म। और इस सबको एक जगह कंपाइल कर लो और इसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज क्यों करना है? ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने ये क्वेश्चन करे हैं, ये आए हुए हैं। फिर जब आप पिछले क्वेश्चंस फिर बाद में करोगे ना, प्रीवियस क्वेश्चंस, फिर आपको समझ आएगा यार देखो ये तो पहले भी आया था, ये तो यहाँ से डिराइव होके आया है। फिर आपको समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं और फिर आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन पूछ देते हैं। हमेशा उसका कोई ईज़ियर वर्ज़न पहले रहा होता है, उसके बाद वो डिटेल में जाते हैं। अच्छा, ये इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। अब कभी-कभी तो बिल्कुल ही नया राइटर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और डेप्थ में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पर फिर मैंने वही कहा ना, 100 क्वेश्चंस तो करने भी नहीं है, 50 से ऊपर ही सही होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बार पता नहीं किस ईयर में क्वेश्चन आया है, इवलिना का ही, मुझे वही याद आ रहा है। इवलिना का, तो उसमें कुछ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक सबटाइटल का है या कुछ, मतलब सिंपल क्वेश्चन है वो। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है कि द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, तो मतलब कौन सी 2 जगह बोली हैं? अब ठीक है, एक तो टाइटल से इंस्पायर्ड है कि अभी सबटाइटल में बोला ही है हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, तो दे एक्सपेक्ट यू एज रीडर्स कि आप क्यूरियस तो होना ही चाहिए ना कि एंट्रेंस कहाँ हो रही है, तो कब हो रही है। ऑल्सो इवलिना पे पहले ईजियर क्वेश्चन था विच गेव यू अ हिंट कि ठीक है इवलिना इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको डिराइव मतलब करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछा है और कितना उसका चांस है कि वो पता कर सक कि वो आ सकता है। पता नहीं आपको ये बात मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। मतलब आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इन केस आई एम नॉट मेकिंग सेंस, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उससे आई थिंक आई विल आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। I really hope I made things clear. This was this was about it. मैंने इससे पहले भी ये वीडियो रिकॉर्ड किया पर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसमें मैंने 3-4 पॉइंट लिख दिए थे, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही दिस इज़ नॉट सो ईजी। मतलब स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करनी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत प्लानिंग से चलती हूँ। क्योंकि प्लान नहीं करोगे, वो कहते हैं ना, वो एक कोट है, इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये बहुत सच है। आप ये रियलाइज़ करोगे टाइम पे, अगर आप प्लान नहीं करोगे, तो आई थिंक प्लानिंग इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कब किसको कितना टाइम देना है। अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, आई एम सो सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है।
जैसे आपको ना, जैसे आप ब्रिटिश लिटरेचर के, मैंने आपको ये डिवाइड करने थे यार मंथ्स, जैसे 7 मंथ्स है ना, तो इसमें आपका 3 मंथ्स में आपको ब्रिटिश लिटरेचर करना है। अब आप मुझे बोलेंगे कि अब हाँ ब्रिटिश लिटरेचर कम हो गया है, नहीं पूछ रहे हैं, बट यार ब्रिटिश लिटरेचर जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेवरदलेस। आपको तो ये बेस बनाएगा बाकी लिटरेचर्स के लिए, बेस बनाएगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा ब्रिटिश लिटरेचर, आपको एक जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलना होगा ना प्रिपरेशन, क्योंकि ब्रिटिश हमने पढ़ा होता है कॉलेज में भी, तो वो इजी हो जाएगा। फिर आपको ब्रिटिश से फिर धीरे धीरे आप इंडियन पे आओगे, अमेरिकन पे आपको समझ आने लग जाएगा, आप रिलेट करोगे उसको ब्रिटिश से। 3 मंथ्स आप ब्रिटिश करेंगे, मतलब ये सिर्फ प्रोपोर्शन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके पास टाइम है। उसके बाद जो भी आपके अदर लिटरेचर्स हैं, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, मैंने इनको सबको इक्वल टाइम दिया था। यूरोपियन, और क्या होता है, और मिसलेनियस रख लो, और भी तो होते हैं ना, नॉर्वेजियन और आपके कैनेडियन, वो तो इसमें आ गए वैसे, अमेरिकन में ही आ जाएंगे। पर जैसे जो वो होते हैं, मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा, जो भी मिसलेनियस राइटर्स होंगे, अम, उनका उनका भी रख लो। ये एक मेजर होते हैं, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन। और उसके बाद आपके पास थ्योरी क्रिटिसिज्म भी है ना, इसको बहुत टाइम देना है। जैसे आपके पास 3 महीने हैं, तो यहाँ तो 2 मंथ्स, वैसे 2 मंथ ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि थ्योरी और क्रिटिसिज्म में पता है बेसिक्स आते हैं। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना, तो वो काफ़ी ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में दिया होता है। और फिर थ्योरी ना समझने वाली चीज़ है, तो समझने वाली चीज़ में बुक्स वैसे भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम समझ आती हैं। तो बेसिक्स पता होने चाहिए आपको थ्योरी के और क्रिटिसिज्म के। क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स दिस इज़ क्वाइट वास्ट एंड एवरीथिंग, बट आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है। आपका पहला काम क्या करना है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जितना भी है ना वो सारा आना चाहिए। उसके बाद शुरू करो। आप जिस दिन PYQs पे ख़त्म हो जाओ, उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अब वो आपकी पेस है, पहले वो ख़त्म करो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप PYQs करे बिना पढ़ाई कर रहे हो ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप चल रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो फिर आप नहीं पहुँचोगे सही डेस्टिनेशन पे। आई मीन दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग, बट ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो फिर आप यहाँ पहुँचना है, आप चले हैं यहाँ, ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता ना ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप भटकोगे तो आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पहुँचने में, पहुँच तो आप जाओगे, भट भटक के भी पहुँच जाते हैं, पर अगर आपको पहले ही पता है कि रास्ता ये है, तो इसी पे चलो ना। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ रास्ता है। तो थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को 2 मंथ्स दे दिए, बचे हुए मंथ्स इनमें डिवाइड कर दो, कितने बचे, 4 मंथ्स, 1 मंथ ईच कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है, और बस ऐसे करना है। इसमें फिर ब्रिटिश में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पहले करना है, किसको कितना टाइम देना है। क्योंकि फिर क्या होएगा कि आप ओल्ड इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश को, और मे बी चौसेरियन एज को ज़्यादा टाइम दे देंगे, और जब तक आप पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न पे पहुंचेंगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जब ऐसा होगा तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया मैं। तो क्या होता है कि पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आज मुझे, अगर मेरे पास मान लीजिए 3 महीने हैं, तो 2 महीने में बाकी सब, और 1 महीने में पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न, इतनी इंपॉर्टेंस आपको देनी है। तो वो चीज़ आपकी टारगेट्स होने चाहिए, आपकी डायरी होनी चाहिए, रात को सोने से पहले बनाइए कि ठीक है कल उठ के मुझे ये करना है। और रियलिस्टिक टारगेट्स प्लीज़, नहीं तो बहुत बुरा लगता है यार जब टारगेट अचीव नहीं होता, और उतना ही अच्छा लगता है अगर टारगेट अचीव हो जाता है। अच्छा, अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अच्छा यार टारगेट अचीव हो जाए कई बार, क्योंकि होता है ना, जैसे मुझे ऐसा होता था कि ठीक है आज का टारगेट ये है, मान लीजिए 1 2 3 आज का टारगेट है, ये कल का टारगेट है, टुडे एंड टुमारो, है ना, आज का और कल का टारगेट है ना। अब अब मान लीजिए कि 1 2 3 वाओ कर लिया मैंने, क्योंकि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आज मैंने कर लिया। अब कल का भी टारगेट है कुछ 1 2 3, अब मैं क्या करूँगी, टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, तो मैं कल का भी आज ही कर लूँगी। मैं लिखूंगी नहीं कि मैंने आज किया, तो मैं कल का भी आज ही कर लूँगी। फिर मुझे पता है क्या होगा, फिर लगेगा कि कल ना कम करना पड़ेगा, तो फिर वो एक्साइटमेंट होती है कि कल कम करना पड़ेगा, और ईजिली हो जाएगा। फिर इससे बफर की भी ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए किसी दिन कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती हैं, एंड कभी कोई गेस्ट हो गए, कभी कुछ हो गया, सो you will find at times पार्टीज एंड कॉलेज, तो कॉलेज में तो चलता रहता है। तो उस टाइम पे आपके पास ये बफर काम आएगा कि अगर आप कल का भी आज ही कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो अगर आपको कहीं बाई चांस अगर आपको अपना टाइम वेस्ट आप
स्पेस तो नहीं कहूँगी, पर कहीं और आपको देना पड़ गया, तो एटलीस्ट आपके पास वो बफर है कि आप अपने टारगेट से स्टिक कर पा रहे हैं फिर भी। पता नहीं आपको ये वाला मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ये मुझे बहुत हेल्प करता है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप्स मी गोइंग, और इससे और अच्छा करने की हिम्मत आती है, क्योंकि मैंने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया, मैंने तो कल का भी आधा टारगेट आज ही अचीव कर लिया है। तो वो एक अचीविंग की जो फीलिंग है ना, वो अच्छी होती है, और अगर ये नहीं हो पाए तो वो बड़ा बुरा लगता है। इसीलिए रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए। और ये जो कैलेंडर वाली बात मैं कह रही हूँ ना, ये भी बड़ा अच्छा है, ये ज़रूर कीजिएगा। मतलब मर्ज़ी है ऑब्वियसली, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग। चलिए, आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द वीडियो। I tried my level best, but this is a vast topic and the video has already gotten really long. मुझे नहीं पता कि आई एम सॉरी इफ़ आई कुड नॉट एक्सप्लेन। अगर आपको लगता है मैं फिर से बना दूँगी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कोई स्पेसिफिक आपको पूछना है कि हाँ ये करना है या ये करना है, या अगर आप चाहते हैं कि इसका बता दीजिए या इसका बता दीजिए, 5-5 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूँगी। टाइम टेबल मतलब प्लानिंग टाइप की, हाँ इतने में इतना हो जाना चाहिए, इतने में इतना हो जाना चाहिए, ठीक है? इन केस यू कांट डू दिस प्रोपोर्शन थिंग प्रॉपर्ली, जस्ट इन केस। तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूँगी वीडियो। Also, thank you so much for asking me to make this video. It kind of keeps me motivated. Really, it really means a lot. Thank you so much. So thank you so much for watching and stay tuned for more videos. Bye bye. Take care.